नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज होस्टिंग की ड्यूटी मुझे असाइन हुई है क्योंकि सुरेश वासन अंकल आज बिजी हैं। बिजी यूं है कि उनकी पत्नी वीना वासन जी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है और आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रे करें, क्योंकि इंसान का फर्ज है कि किसी की बदहाली पे अफसोस ना कर, किसी की बदहाली पे अफसोस ना कर, उसके लिए दुआ कर। और जब तेरी जरूरत हो तो दूर से मत देखा कर, उसके साथ हुआ कर। तो ये इंसानी फर्ज, ये संगत के आपस के संबंधों का फर्ज हमें निभाना है। इन शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूं पम्मू परविंदर चावला आंटी का। और इनकी जो कहानी है, इनका जो सत्संग है, इनकी जो पूरी इट्स सो इंस्पायरिंग, इतना साहस की, करेज की और हिम्मत की कहानी है। बहुत ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि जिसने जिया है वो बताए, जिसने वो गुरुजी की कृपा का रस पिया है वो बताए, क्योंकि उसी ने तो असल में चखा है। और मैं बताऊंगा तो फिर वो पराई कहानी हो जाएगी। अपनी कहानी कभी सुनाऊंगा आपको, लेकिन पम्मू आंटी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। पम्मू आंटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सत्संग आप सुना के लोगों को तृप्त कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी बेहद सुनने लायक है। नमस्ते गुरु जी। आई वुड जस्ट लाइक टू से जिवें वासन अंकल बोलते हैं ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗ੍ਰੀਟ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਮਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। मतलब कितना शुकराना करिए। सो एज मैं जिवें जिवें पढ़ती जाऊंगी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੁਗਰੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਡੁਗਰੀ। तो ओके, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं आज ਇੰਨੀ एक्साइटेड ਆ, ਇੰਨੀ ਨਰਵਸ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਉਵੇਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਬੁਲਵਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਨਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਲ ਦੈਟ ਸਾਰਾ ਨਰਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਬਿਰਤ ਦੀ ਸਾਈਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਈਨ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਰਦਾਸ। ਐਂਡ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀਓ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹੀਓ ਹੀ ਉਹੀਓ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਜਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਪੰਮੋ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਬਣਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਥੀਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਪੁਆਇੰਟਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ, ਅਣਗਿਣਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਬੈਠੀਏ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਓਲਡ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਨਿਊ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ
काफी संगत ने कहा कि नोटबुक बनानी चाहिए है, एंड विच इज सो ट्रू। मैनू अज रियलाइज होया है कि जो आप नोटबुक बनाने हैं ना, तो जो गुरु जी दियां पुस्तकां लिखने लगते हैं, उन्होंने काउंटलैस ब्लैसिंग्स लिखने लगते हैं, तो सानू पता चलता है कि साडी जिंदगी की होंदी अगर गुरु जी का साथ ना होंदा या सानू गुरु जी शरण में नहीं लेंदे। तो मैं शुरुआत एवें ही करांगी एक लाइन बोल के कि क्या जिंदगी है, क्या किस्मत लिखी है, और वो इसलिए क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है और ये किस्मत गुरु ने लिखी है। सो दैट्स ऑल जरा एस पूरा सफाइस कर देंदी है 2 लाइना। सो आई जस्ट शेयर माई जर्नी की शुरुआत कितों हुई। ते मैनू बचपन तो ही आर्थराइटिस है, मतलब 15 ईयर्स की उम्र तो। ते मैं आई एम ऑन अ व्हील चेयर, ते मैं उसमें जूझ रही हूँ, एंड आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। ते मेरी मम्मी बड़ी रिलीजियस सी, गुरुद्वारे गुरुद्वारे लै जाना, यू नो, बिकॉज आर्थराइटिस है कि ठीक हो जाएगी मेरी कुड़ी, ते अरदासां करनियां, गुरुद्वारियां च लै जाना। ते मैं हम ट्रैवल करती सी, मतलब ठीक सी, मैं अपने आप नू कहंदे ना एक्सेप्ट कर लिया सी कि मैं व्हीलचेयर पे हाँ और मेरी जिंदगी है, मैं खुश रहना है। ते मैं ट्रैवल कर रही सी, वर्ल्ड ट्रैवल कर रही सी, कंट्रीज घूम रही सी, इंडिया घूम रही सी। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ फ्रेंड्स ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ट्रैवल कर रही हाँ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਫਰੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਜੂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਮੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਵਾਕਿੰਗ ਪੰਮੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, आई एम तो वॉकिंग भी, तो मैं तो ट्रैवल कर रही हाँ, मैं तो हूँ केदारनाथ होके आई हाँ, मैं तो इत्थे होके आई हाँ, सो आई एम फाइन। शी सेड नहीं, तू ना मैंने सपना आया है ते तू ना ए मंदिर जा, ते उत्थे ना बड़ी महानता है लंगर दी, ते तू उत्थे ना लंगर खा के आ, बिकॉज शी केम टू नो कि मैं दिल्ली जा रही हाँ। ते शी सेड उत्थे बड़ा मंदिर है, तो उत्थे ना लंगर खा के आना है। तो मैं क्या यार मैं नहीं मनदी है बाबिया बाबिया विच, एंड सॉरी टू से दैट गुरु जी, मैनू पता नहीं सी, कह रही है ना जे नादान बच्ची तुहाडी या प्यारी तुहाडी। ते मैं क्या मैं नहीं बाबा बाबा विच मनदी, एंड यू नो मैं तो ना पामिस्ट्री आज तक मनी आ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी विच मनी आ, ते आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सो शी रिक्वेस्टेड, उन्हें मैंने बार बार क्या नहीं पमू तू जा, मैंने पता तू दिल्ली जा रही है, पता बड़ी संगत बड़ी चंगी है उत्थे दी, तेनू ना लैके भी जाएगी, बिकॉज शी नोज आई एम ऑन अ व्हील चेयर, तो मेरे लिए जाना मुश्किल होएगा। मैंने कहनी संगत उत्थे दी बड़ी प्यारी है, तेनू लैके भी जाएगी, तेनू छड़ भी जाएगी वापस। ते उन्हें बार बार किया, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में की थॉट आया सी, क्योंकि कहते ना उदों बस गुरु जी ने मैनू अपने चरणों में लैना सीगा, ते इसलिए बस मैनू यह होया कि मेरी फ्रेंड मेरे वास्ते इन्ना सोच रही है, मैनू इन्ना बार बार कह रही है, चलो मैनू विश्वास से विश्वास रखना चाहिए। आई टोल्ड हर अच्छा ठीक है मैं चले जाऊंगी। एनीवेज कट टू, आई वांट टू टेक यू थोड़ा पीछे फ्लैशबैक पे की होया सी जैन 2015 की ਜਿਹੜੀ महाशिवरात्रि सी ना, ते आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ठंडाई, ते ना मैं इन्हां नाल ही दोनों सहेलियां नाल घूम रही सी, ते मैं इन्हां नूं कहा यार मैनूं अज ठंडाई पीनी है, मैनूं कित्थों भी ठंडाई चाहिदी है। ते इन्हां ने मैनूं कहा अच्छा असीं नेड़े तेरे ਜਿਹੜੇ भी मंदिर सीगे, यू नो ਜਿਹੜੇ भी ਇੱਥੇ स्टोर सीगे, असीं हर जगह पता कीता ते मैनूं ठंडाई ना मिली, एंड आई वाज वेरी अपसेट। तो मैं बोला चल जान दे यार, नहीं है तो नहीं है। फिर मैं आई वाज ड्राइविंग द कार, ते मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉरी संगत जी, ते मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्या अच्छा मैंने बड़ी भुख लगी है, ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ कैफे ਤੇ रुके, ਤੇ मैं ਉੱਥੋਂ मटन बर्गर वगैरह मंगाया, ते मैं खादा, ते खा रही सी जदों, ते मैनू मंजू आंटी कहती है पता है पमो एक ना मैनू याद आया इत्थे ना एक नवा मंदिर खुलिया है, और वो शिव जी का मंदिर है, ते उत्थे तां 100% ठंडाई मिलूगी। ते मैं क्या अच्छा चलो, मैं क्या तुसी मैनू कित्थे भी लै, कहंदी बड़ा दूर है लेकिन बिकॉज
मैं रहनी हां बैंड्रा विच ते ओ सीगा कांदीवली विच खुलिया सीगा ते हाले हुणे खुलिया ही सी, दैट्स व्हाट शी सेड। ते मैं क्या तू मैंने टिम्बकटू भी चलेंगी ना जान ਨੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਠੰਡਾਈ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਦੀਵਲੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਂਦੀਵਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਔਨ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਲਿਫਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟਿਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਠੰਡਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੜਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਕੱਢਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਟੈਲ ਮੀ ਯਾਰ ਪਮੂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਠੰਡਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੀ ਲੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਚਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਆਈ ਵੇਟ ਫॉर ਯੂ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ, my friend was not there, he said कि मैं ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ they went up, had chai prasad, they came and we came back। cut to now this dream thing happened कि ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ dream। so I just wanted to say कि how ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। तो फिर मैं दिल्ली गई ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਪੰਮੋ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਟੂ ਕੱਟ ਇਟ ਸ਼ਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਸੋ आई ट्राई माय बेस्ट। तो मैं गई कैसे भी करके यू नो, और मैं जैसे ही बड़े मंदिर में जाती हूँ, सबको पता होगा कि वहां पे बड़ी लाइन लगती है, तो मैं टैक्सी में थी, मैंने अपनी कुर्सी को फोल्ड किया, टैक्सी में डाला, वहां पहुंची तो वहां पे हमें रोका गया, बोलते कि आपको पैदल जाना है यहाँ से। तो आई जस्ट टोल्ड अंकल कि अंकल मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से इंटरकॉम पे बताया आगे कि वो व्हीलचेयर पे आ रहे हैं तो उनको आने दे गाड़ी। सो द गाड़ी वेंट टिल द एंड एंड वहां पे पार्क की, मुझे उतारा गया। जैसे ही मैं पैर अपना रखती हूँ नीचे टैक्सी से, मैं देखती हूँ कि वहां पे इतना बड़ा शिवलिंग है। एंड एज आई सेड कि मैं एक सरदार फैमिली को बिलोंग करती हूँ और हमें होता है कि मैंने नहीं जाना ये चीजों में, मैं किसी और चीजों में नहीं पड़ती, पाठ करना अपना ये। मैं देखती हूँ वहां पे इतना बड़ा शिवलिंग है और वहां पे गुरबानी चल रही है। एंड दैट वाज माय फर्स्ट आंसर एंड आंसर टू एवरीबडी कि हम सोचते रहते हैं कि ये भगवान वो भगवान, ये चीज नहीं वो नहीं, बट गॉड इज वन। एंड वो उस टाइम मुझे गुरुजी ने बताया कि यू नो जो आज मैं आके समझी हूँ, सो दैट्स अ लॉन्ग जर्नी जो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो फिर मैं वहां से शुरू होगी, देन कटिंग इट वेरी शॉर्ट, कमिंग बैक टू बॉम्बे। फिर मैं बॉम्बे पहुंची, बहुत कुछ हुआ उसके बीच में। फिर मैं इनके साथ मैंने मंदिर जाने को डिसाइड किया, तो भी मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है कैसे है। सो मैं मंदिर गई। जब मैं मंदिर गई तो अरे वहां पे तो मतलब मजा ही आ गया, मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल। 2 घंटे का शब्द चलना। तो संगत जी लाइक आई सेड कि हम भी जाते थे गुरुद्वारे, जब बचपन से हम जाते आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा माहौल नहीं बना या ऐसे हमें वो सुनाई नहीं दी, वो पावरफुल एनर्जी नहीं आई। अगर हमने शब्द सुने भी है तो नेवर कि चलो गए मत्था टेक दिया आ गए, पर उस दिन जो गुरबानी मेरे कानों में गई इतनी लाउड, आई मीन आई वाज जस्ट मैस्मराइज्ड एंड आई जस्ट इंजॉयड दैट। और उसके बाद फिर थोड़ा सत्संग शेयरिंग होता था वो टाइम पे, तो लंगर प्रसाद की महिमा बताई गई एंड ऑल दैट, और फिर हम जी आ गए। तो उसके बाद मैं 1-2 बार और गई। तो एक दिन मेरी फ्रेंड यही मंजू मुझे बोलती है, पमो यार मंडे को चलेगी क्या? तो मैंने बोला पागल है क्या, मंडे को जाऊंगी इतनी दूर चला के गाड़ी, खाली एक समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद के लिए? मैं तो जाऊंगी थर्सडे को या संडे को, जिस दिन बहुत सारा मतलब प्रॉपर लंगर मिलता है। क्योंकि यू नो आई लर्न और आई अंडरस्टूड कि गुरुजी सो क्यूट। मैंने उसे कहा
कि यार मेरे घर में ना एक मराठी बाई काम करती थी, उसका खाना खा के तंग आ गई थी। जब मैं मंदिर जाना तो वहां पे एक पंजाबी खाना जो आंटियां बनाती थी अपने हाथ का, सो इट वाज लाइक सो डिलिशियस। एंड मतलब वो एक एक कारण था कि जिसने मुझे खींचा कि मैं मंदिर जाऊं दोबारा दोबारा, अदर देन द गुरबानी। सो आई वुड लाइक टू से हियर कि गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, जब आप जाना शुरू करते हो ना तो ही इज लाइक अ फादर। और कहते हैं ना जो जिसको पता है कि आपको कौन सा टॉय पसंद है, तो वो टॉय से आपको खींच के अपने पास ले आएंगे, बिकॉज you just crazy about that thing and you will go. So my journey started like that. तो पहले तो मैं लंगर के लिए जाना, तो मैं अपनी जर्नी को ना 3 फेजेस में कहना चाहूंगी। पहले कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो तो आप उसके बाद जाने लगते हो, यू स्टार्ट गोइंग, एंड आपको पता नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो, बस बस आपको जाना है। आपको ये नहीं समझ आ रहा आपको क्यों जाना है। ये नहीं है कि मुझे हर कोई पूछता आपका कनेक्शन कभी हुआ, आपका ये कभी हुआ, तो आई नेवर टिल नाउ आई डिडंट नो कि मेरा कनेक्शन कब हुआ और क्या हुआ। बट मैं अपनी जर्नी को इस फेज में कहूंगी कि पहले तो गुरुजी ने मुझे मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचा कि मैं जा रही हूँ, आई एम जस्ट अट्रैक्टेड, मुझे जाना है, मुझे जाना है, पर क्यों जाना है मुझे नहीं पता। उसके बाद ऐसा फेज आया कि मुझे गुरुजी से प्यार हुआ, फिर मुझे इश्क हुआ, और अब तो ऐसा है कि जुनून हो गया है कि बस गुरुजी 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 गुरुजी, एंड ही इज द अल्टीमेट, ही इज द ओनली गॉड, ही इज एवरीथिंग। एंड इस पॉइंट पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इतनी उम्र हो गई पर मुझे आज तक अब समझ आया है कि प्यार क्या होता है, और वो गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि प्यार क्या होता है। अपनी संगत के थ्रू, आई डोंट नो हाउ, बट गुरुजी हैज जस्ट चेंज्ड माय लाइफ। एंड जो मैं मतलब ये नहीं है कि एक जिंदगी जा रही थी जैसे चलती है, बट गुरुजी के मतलब गुरुजी ने जैसे ही अपने उसमें लिया तो इट्स बिकम लाइक कि पता नहीं एक रोलर कोस्टर राइड है कि अप एंड डाउन भी हो रहा है, नींबू की तरह भी निचुड़ रहे हैं, पर हर चीज में मजा आ रहा है। मतलब देयर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द लाइफ, दैट इज माय जर्नी। एंड संगत जी जो भी मैं बोल रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंसेस है और इसमें मेरी ही लर्निंग है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, हर किसी की अपनी जर्नी है। सो दिस इज माय जर्नी आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर रही हूँ, मेरी जर्नी है। ते सो फिर ये हुआ कि मैं कहा थी, मैं भूल गई, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो मैं जाने लगी और ये होने लगा। फिर तो जब मैं बॉम्बे बांद्रा से जाती थी ना, तो मैं ना हर संगत से पूछती थी कि जो बांद्रा में रहते हैं कि चलो साथ में चलते हैं, बिकॉज मैं इतनी दूर तो जा ही रही हूँ, तो उनके साथ जाती थी। बस ऐसे ऐसे जर्नी चलती रही। और फिर आई से कि ये नहीं था कि आई वॉज नॉट इंजॉइंग लाइफ, पहले मैं पहले भी ट्रेवल वर्ल्ड कर रही थी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं जाती थी ना मंदिर, तो मुझे ये सब जो सेवादार हैं, पार्किंग सेवादार हैं, मैं कुर्सी में जाती, मुझे वो लोग उठाते थे और फिर उठा के मुझे गाड़ी में बिठाते थे ड्राइव करने के लिए, और गाड़ी से मुझे उठा के कुर्सी पे बिठाया जाता था। आई वॉज इन दैट स्टेट, मतलब कुर्सी पे थी पर मेरे को उठाया जाता था। एनीवेज, ये जो उनकी ब्लेसिंग्स है ना, मुझे धीरे 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 जाके समझ में आई कि क्या क्या ब्लेसिंग्स हुई हैं। और आपको लगता है कि ये तो सब हो रहा है हो रहा है, पर जब आप फिर बीच में ऐसा टाइम भी आया जब मैं बीमार हो गई, तो जब अब मैं बीमार हुई ना, तब मुझे समझ में आया कि क्या क्या ब्लेसिंग्स मेरे को मिली है। तो शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे बेड में मतलब रखा या मुझे बीमार किया कि मैं समझ पाऊं कि उनकी लीला और उनका जो ब्लेसिंग्स मेरे पे न्यौछावर हो रही हैं। एनीवेज, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, मैं कहाँ जा रही हूँ, पर जो बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं प्लीज। तो कनेक्शन कहाँ है मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट सेइंग। तो एनीवेज, फिर मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैं ऐसे जाती थी, मुझे उठाया जाता था।
फिर बस मुझे एक कहते हैं ना लत लग गई कि मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। और अभी तो मुझे मजा आ रहा था सत्संग सुनने वहां पे, और ये शब्द सुनने में आना। तो हर हर थर्सडे को, हर सैटरडे को, हर संडे को मैं मंदिर जाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि मैंने ना बहुत सी सुनी थी, सत्संग सुने थे, किसी का कैंसर ठीक हो गया, गुरुजी ने लंगर प्रसाद से किसी का ये बीमारी ठीक कर दी वो। एनीवेज व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मैं नवंबर में मैंने जाना शुरू किया था मंदिर, ते उस तो बाद मैं चली गई दुबई। इन जनवरी में चली गई दुबई, मतलब थोड़ा टाइम ही मैं मंदिर गई थी, और मैं फिर जनवरी में चली गई दुबई मेरी कजन के साथ। जब मैं तो मैंने जैसे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक सी गई हूँ, मैं मतलब चल सकती सी कुर्सी पे बैठ के, मतलब एवरीथिंग वाज फाइन, पेन नहीं था। तो जब मैं दुबई सीगी ते की होया, सॉरी मेरी टुट्टी फिट्टी सारी लैंग्वेजेस मिक्स, माफ करना। तो जब मैं दुबई सीगी ते पता नहीं मुझे क्या हुआ वहां पे, मेरी टांगों में दर्द होने लग गया। इतना दर्द की चीसें पड़ती थी। और जो मैं सीढ़ियां उतर के मतलब वो उसके सहारे रेलिंग के खुद उतर जाती थी, वो मैं उतर नहीं पा रही थी। मुझे दो दो बंदे चाहिए थे, सहारा चाहिए था नीचे लाने के लिए, और वो भी मैं इतना रोती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैं ना एक ग्रुप में ज्वाइन हो गई थी, जय गुरु जी के ग्रुप में। और वहां पे मैसेजेस आते थे कि आज यहाँ पे सत्संग है, आज वहां पे सत्संग है। तो वहां पे मुझे मैसेज आया कि फलाना फलाना तारीख को ये जगह पे सत्संग है। और पता नहीं मेरे दिल में ऐसा आया कि अरे काश मैं वहां होती। और फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, व्हेन आई गो बैक मैं जाके अटेंड करूंगी। और फिर उस दौरान में मेरे को ये दर्द चालू हो गया, और इतना दर्द, इतना दर्द। और फिर मैंने अपनी कजन को कहा भैया मुझे वापस जाना है इंडिया, जाके मैं अपना इलाज कराऊंगी, मैं मसाज वसाज कराऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी एटलीस्ट, क्योंकि मैं पहले भी वही कराया था, ठीक हो गई थी। तो माय कजिन सेड कि नहीं बमूदी आपने नहीं जाना, आप यहीं रुको, मैं आपका इलाज यहीं पे करा दूंगी। तो मैंने बोला पागल है क्या, इतने पैसे खर्चेगी, मैं वहां इंडिया में जाके कर लूंगी। शी सेड नहीं आप मेरे साथ ही जाना। तो एनीवेज शी मेरे को उसने हॉस्पिटल, वो जो आयुर्वेदा मसाज वाला होता है वहां पे मेरे को हफ्ते का वो लेके लेके दिया मसाज का। और फिर उसने मुझे रहा लिया। एनीवेज मैंने जाना, ठीक उस दिन थोड़ा ठीक लगना, फिर आना तो फिर वही हालत। तो देन फाइनली आई स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड नहीं आई हैव टू गो बैक। तो एनीवेज फिर उसने मुझे जाने दिया। टू कट इट शॉर्ट आई केम बैक। जैसे ही आई मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला टेस्ट किए, सब किया। और तो मुझे बोलता है जी आपको ये एक्सरे कराना पड़ेगा ना। आई वाज वेरी दिस थिंग कि यार उसने कुछ देखा है नहीं, समझ आ नहीं रहा, हड्डी की प्रॉब्लम है नहीं। तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। मैं घर आई तो मेरे को याद आया, वो सत्संग याद आए जिसमें कहा था कि लंगर खाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, और दिल्ली में भी जब मैं गई थी तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि लंगर प्रसाद खाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो एनीवेज तो मेरे मन में आया, तो मैं जैसे ही वापस आई डॉक्टर के पास, तो आई जस्ट डिसाइडेड, मैंने फोन किया अपनी फ्रेंड को, ये सनीता फ्रेंड को फोन किया। और मैंने बोला सनीता तू एक काम करेगी, मैं ड्राइव करके ले जाऊंगी जहां भी जाना है। जहां मैं बोलती थी कि चाय प्रसाद के लिए क्यों जाऊं मैं इतनी दूर, मैंने बोला अगर चाय प्रसाद का भी सिर्फ लंगर होगा तो भी हम चलेंगे, बट आई वांट टू गो। तो फिर मतलब यहाँ से बैंड्रा से मुझे टाउन जाना पड़ता या कहीं भी जाना पड़ता, तो आई स्टार्टेड गोइंग फॉर सत्संग। सिर्फ चाय प्रसाद पी के सत्संग अटेंड करके आ जाना वापस। संगत जी आप मानोगे नहीं, सच में, मतलब आई मस्ट हैव गॉन, 4 सत्संग पे गई होंगी मैंने, 4 बार सिर्फ लंगर खाया होगा। और मेरा उसके बाद दर्द कहाँ गया, मैंने कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं खाया, मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं की। और आई डोंट नो वेयर माई मेरा वो दर्द कहाँ गया। सो एनीवेज आई वॉज अट्रैक्टेड टू गोइंग टू द मंदिर, बट इससे इससे मुझे विश्वास बढ़ने लगा। चलो अच्छा, अब क्या होना कि जब भी मैंने अरदास करनी या पाठ करना, उसके बाद ना, तो आई यूज टू लुक गुरु नानक देव जी की फोटो पे। तो मैंने गुरु जी को करनी, गुरु जी को मत्था टेकना, और फिर सडनली मुझे होता कि नहीं नहीं, मुझे गुरु नानक देव जी को करना चाहिए। एक गिल्टी फीलिंग आती।
और वो अभी तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि जो अब मैं जानती हूँ कि गुरुजी के अलावा कोई नहीं है। और मैं मतलब हमेशा वो कंफ्यूजन में रहती कि यू नो एम आई डूइंग द राइट थिंग, कि मैं गुरुजी में मान रही हूँ और ये कर रही हूँ। एनीवेज, तो उसका जवाब भी मुझे गुरुजी ने दिया। और और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि मैं ऐसी डाउटिंग वाली लड़की थी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਅਕਾਨੀ ਵਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ सत्संग होना, शब्द बजने, तो उस तो बाद ना सारी संगत कहती, अरे मुझे तो त्रिशूल दिख रहा है, मुझे तो गुरु नानक देव जी दिख रहे हैं, मुझे तो यू नो ओम दिख रहा है उनकी गद्दी पे। तो मैं सोचती यार मुझे क्यों नहीं दिखता। और फिर मैं सोचती जरूर ना इन्होंने ना जो लोग गद्दी सजाते हैं, सॉरी गुरु जी, जो लोग गद्दी सजाते हैं वो लोग पीछे इंप्रेशन रखते होंगे, उस पे चिपक जाता होगा कपड़ा गद्दी का, तो उस पे ओम और त्रिशूल आ जाता होगा। मतलब हमारी बुद्धि इतनी गलत, इतनी गंदी। तो मैं वो सोचती थी, बहुत देर तक वो चलता रहा चलता रहा। तो क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा ये सब, या मेरी आंखें क्या थी या वट एवर, मे बी आई डिडंट एक्सेप्ट you know this thing. I don't know what the reason was, but I never wanted to challenge also. मुझे कभी गुरुजी को चैलेंज नहीं करना था कि मुझे आप दिखाओ, मुझे आप ये रूप में आओ, नहीं। मैंने बोला जो है विश्वास करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। सो दैट वाज माय थिंकिंग। एनीवेज द लाइफ वेंट ऑन। तो एक दिन ना मेरे घर पे सत्संग हुआ। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर दिस, बट आई एम जस्ट कमिंग टू द शॉर्ट ऑफ इट। एक दिन मेरे घर पे सत्संग हुआ और मैं यहीं पे सो गई सोफा लगा के, और सोफे पे लगा के सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मैं दहाड़े मार के रो रही थी। तो जैसे मैंने आंखें खोली, मैंने गुरुजी का देखा स्वरूप, और गुरुजी ने मुझे उस टाइम जवाब दिया कि यू नो, और वो ड्रीम था, ऐसा ड्रीम था जिसमें मैं एक भंवर में हूँ, एंड लाइक यू नो एक कहते हैं ना जिवें समुंदर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ बस। और फिर मेरियां अखा खुल जांदियां, मतलब मेरी फैमिली कोई भी नहीं आंदा। ते दैट टाइम फिर मैंने गुरुजी ने जवाब दिता कि कोई भी नहीं मैं तेरा सब कुछ हाँ, मैं तेरा भरा हाँ, मेरी तेरी भैन आ, तेरी मतलब मम्मी आ, तेरे डैडी आ, सब कुछ मैं वहां। एंड दैट डे आई अंडरस्टूड कि गुरुजी इज एवरीथिंग फॉर मी, एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग। एंड सॉरी संगत जी, मैं विचों रोक रही हूँ। यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट दिस दरबार। you know, I just want to show off my Guruji, my guru. uh, ये एंजल जो थी मैं ना, बिकॉज ही इज माई एंजल, वो मेरे रब है, मेरे एंजल है, मेरे सब कुछ है। तो ये भी एक सत्संग है बहुत बड़ा इसके पीछे, जो मैं बाद में शेयर करूंगी अगर टाइम है तो। सो या आई थॉट आप लोग सोच रहे कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, यू नो व्हाटएवर। अच्छा, तो अब क्या हुआ? सो मच सो मच सो मच गुरुजी, इतना दिया है गुरुजी ने, इतना दिया है, इतना प्यार। एनीवेज, सॉरी, आई एम सो ओवरवेल्म। हाँ, तो फिर वो हो गया। उसके बाद अभी भी नहीं मुझे पता कि मेरा कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। वो कंफ्यूजन लाइफ में चलती रही चलती रही चलती रही। अब क्या हुआ कि जब मेरी फ्रेंड्स आती है, बोलती अरे हम तो ये सेवा करके आए हैं, हम तो ये सेवा करके आए हैं। तो मैंने बोला यार ये सेवा कर रहे हैं, अब मैं क्या सेवा करूं? तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। तो जब मैं जाती थी ना वहां पर, तो जब फेस्टिवल्स होते थे तो मैं देखती थी कि ये लोग ना पार्किंग सेवादार होते हैं, वो लोग शटल चलाते हैं। तो मेरे को आइडिया आया, तो एक दिन मैं गई, तभी पांडे अंकल जो अब गुरुजी के लोटस फीट में है, वो थे कोऑर्डिनेटर। तो मैं उनके पास गई और मैंने बोला अंकल मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी सेवा करूं, मुझे एक आइडिया आया है कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, तो आप मुझे वो सेवा दे दोगे? तो मेरे को शटल सेवा मिली, इतने प्यार से उन्होंने मुझे शटल सेवा दी। और फिर सिर्फ फेस्टिवल्स में मुझे वो सेवा मिलती थी, बिकॉज शटल सिर्फ कांदीवली मंदिर में सिर्फ फेस्टिवल्स को चलती थी। तो फिर एनीवेज आई वाज वेरी हैप्पी, लाइफ वाज गोइंग वेरी हैप्पी। उसके बाद मैंने सेवा मिल गई, मैं सेवा करती सिर्फ फेस्टिवल्स को करती।
उसके बाद मेरी लाइफ ना एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो गई। मैंने दुनिया घूमनी शुरू कर दी। मैं एक एक महीने में 5-5 कंट्री घूमती, और फिर मैं मतलब सेवा तो करती थी सिर्फ फेस्टिवल्स पे, पर मैं अभी घूमना शुरू कर दिया। सो समझो आप 6 महीने या कुछ महीने ये मतलब घूमती रही। जैसे लिटरली गुरुजी ने मुझे हवा में उड़ाया। मतलब मैं इतनी खुश, और मेरा चलना भी ठीक हो गया। मैं अभी थोड़ा चल भी लेती थी स्टिक के सहारे। तो ये सब चेंजेस तब मुझे रियलाइज नहीं हुई कि क्या क्या किया है गुरुजी ने। हमें लगता है कि बस लाइफ जा रही है ना स्मूथली, तो ये नहीं समझ में आता कि नथिंग इज बाय कोइंसिडेंस। मतलब ये नहीं है कि क्यों हो रहा है ये सब, इट्स ऑल गुरुजी। मतलब गुरुजी ने इतना मेरे पे मेहरबानी करी थी कि मैं चलने लग गई थी अभी मैं। तो जो मैं कुर्सी में जाके पूरा आगे मत्था टेकती थी, अब मैं स्टिक पकड़ के जाना और मैं चल के जाना और फिर मैं मत्था टेकती। तो जब भी सत्संग में जाना तो ये मैंडी अंकल जो हमारे हैं पार्किंग सेवादार बॉम्बे के कोऑर्डिनेटर, और वो मुझे हमेशा कहते कि तू ये सत्संग शेयर कर की। और फिर वो बताते थे कि अम्मू आंटी आती थी, हम उसको उठा के बिठाते थे, और आज ये खुद मतलब चल के आ रही है। सो देयर वाज सो मच हैपनिंग, मतलब इतना कुछ हो रहा था। आई एम सॉरी संगत जी, मैं जस्ट बड़ा 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 करती चाहती हूँ, बिकॉज इतना कुछ है। आई डोंट नो कि मैं 1 घंटे में बोल भी पाऊंगी कि नहीं। और अभी ब्लेसिंग्स तो शुरू भी नहीं हुई है, मतलब जो बड़ी 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 ब्लेसिंग्स है। एनीवेज, तो फिर मैंने शेयर करती रही। अब क्या हुआ कि कोरोना आ गया। सो 15, 16, 17 मैंने मतलब बहुत ही इंजॉय किया। मैं देशों देशों घूमी, और फिर आना तो सेवा करनी, ये होना वो होना। तो आई एम जस्ट कमिंग टू द अदर ब्लेसिंग नाउ। फिर कोरोना आया। अब कोरोना में क्या होता है कि अब मेरे पॉइंटर्स लिखे थे, आई जस्ट लुक एट द पॉइंटर्स, आई एम सॉरी सॉरी। हाँ, तो जब कोरोना आया तो यूं हुआ कि हमें जाना, मतलब सत्संग होने घर में होने अलाउड नहीं थे, हम कहीं जा नहीं सकते थे। पर गुरुजी ने ऐसा वो किया कि इतने सत्संग मैंने कोरोना में अटेंड किए हैं ना। मतलब होते थे घरों में, पर थोड़ी सी संगत होती थी, और उसमें जो मैं गुरुजी से लगन लगी है ना, वो एक अलग ही चीज थी। और उसमें गुरुजी ने इतना एंजॉय कराया, और एक बार भी कुछ भी कोरोना को नेड़े नहीं आने दिया गुरुजी ने, क्योंकि हमें विश्वास था कि गुरुजी हमें कुछ नहीं होने देंगे। तो मतलब वो भी सत्संग मैं कभी शेयर करूंगी। और जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। So अच्छा, just let me see my pointers. अच्छा, तो जैसे मैं कह रही थी ना कि बड़ी कंफ्यूजन रहती थी कि गुरु नानक देव जी को माने या क्या करें, बिकॉज बचपन से हम वही करते आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक दिन मैं बड़ी वो हो गई कि यार जस्ट लेट इट बी गुरुजी, मैं छोड़ दिया बस। मैं अभी आपको ही, मैं मुझे मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, मैंने अभी कंफ्यूजन में नहीं रहना। तो मैं बताती हूँ कि गुरुजी इतने प्यारे, इतने प्यारे। क्या हुआ कि जिस दिन मैंने सरेंडर किया कि गुरुजी तुसी सब कुछ हो मेरे लिए, बस मैं हूँ, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना। मैं एक सत्संग पे गई। तो सत्संग पे जैसे ही सत्संग खत्म होने वाला, तो मुझे एक आंटी आके बोलती है, पम्मू आंटी पता है ये यहाँ के जो होस्ट है ना, वो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाए हैं। क्योंकि कुछ सेवा थी जो उन्होंने मतलब गुरु जी की सेवा थी जो उन्होंने ली थी। और तो वो आंटी को बड़ा प्यार था मुझसे कि वो भी गुरुजी की संग, मतलब गुरुजी उनमें हैं। तो एनीवे दैट वाज गुरुजी's लव। सो शी सेड कि मुझे बोला गया कि वो आंटी आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लाई हैं। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। जैसे ही तो ना जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तो ना मैंने देखा कि वो ना ब्रेसलेट्स बांट रहे हैं।
तो मैंने बोला, तो जब मेरे पास आए तो मैंने ऐसे किया हाथ, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं, आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग है, बाहर आपको मिलेगी, आंटी देंगे। तो जैसे ही सत्संग खत्म होता है, मैं बाहर जाती हूँ, तो वो आंटी मेरा हाथ पकड़ती हैं और मेरे हाथ में ऐसे एक ब्रेसलेट पकड़ा देती हैं। और जब मैं वो ब्रेसलेट को देखती हूँ संगत जी, आप मानोगे, आज तक, अभी तक मैंने जिंदगी में मैंने बहुत ब्रेसलेट्स देखे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखी हैं, जिसमें गुरुजी का स्वरूप होता है। वो जो स्वरूप था, वो जो ब्रेसलेट था, उसमें अबाउट 20 वो थे, गुरुजी के मतलब स्वरूप थे। और हर गुरु के, जो हमारे दशम पातशाह हैं, उनके उनके वो लगे हुए थे। और उनके, तो फिर मैं देखती हूँ और मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ आंटी ये क्या? तो वो बोलते हैं, और फिर मैं देखती हूँ कि वो अपना उतार के ना, वो एक आंटी को देती हैं, जो होस्ट आंटी है, बोलते हैं कि मुझे गुरुजी ने कहा है कि ये आपको देने के लिए। तो जब मैं उनका ब्रेसलेट देखती हूँ, उसमें सिर्फ गुरुजी 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 हैं। तो मैं कहती हूँ ये क्या, मतलब आंटी ये आप मेरे लिए जानबूझ के लाए हो आप? कहते हैं ना, मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने जो लाया मैंने तेरे को पहना दिया। सो माय थिंग इज कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने उस दिन मुझे दिखाया कि मतलब तू क्या सोचती है, जा मन जिन्नू मनना है, जो करना है कर, मतलब यू नो, ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि मैं कश्मकश में हूं और गुरुजी ने मुझे लाके सारे दशम पातशाह के वो पहना दिए। फिर मैंने नोटिस किया कि यार उसकी दूसरी साइड में गुरुजी के भी स्वरूप थे, एंड आई वाज लाइक ओके। बट दैट वाज माय आंसर कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, मतलब ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ कि ਉਹ, even though he says कि ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। सो दैट वाज माय आंसर कि मतलब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो दैट वाज वन सत्संग व्हिच आई वांटेड टू शेयर। और बहुत सारे सत्संग है। You still have 20 minutes at least. Yeah, thank you for telling me, because I don't think I will be able to complete in this much time. So And maybe another time. if you go, say, giving the approximate dates, it will help you. Okay. Okay, okay. Um, 1 minute, uncle, 1 minute. हाँ जी, मैं आपसे, मतलब इतने सारे सत्संग है, मैं कैसे, अच्छा, सो व्हेन द कोरोना केम, ये हुआ कि जब कोरोना में मंदिर कांदिवली का बंद हो गया था, और फिर हमें मतलब सेवा नहीं मिलती थी, तो हमने घरों में जाना शुरू कर दिया। अभी संगत जी, इतने सवाल हमारे दिमाग में, क्योंकि हम तो कहते थे ना कि श्रद्धा से कुछ भी करो तो होता है। तो हमने लंगर बनाने, लैविश लैविश लंगर बनाने, जो हमारा दिल करता था, हम सोचते थे कि गुरुजी का भी वही दिल कर रहा है, तो हमने कपकेक्स बनाने, हमने वो करना, मतलब मैं अपने हाथ से बनाती कपकेक्स, और मैं रखती कि गुरुजी को आज कपकेक्स खिलाएंगे। तो हमने ये भी सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे, जहाँ पे होता था कि बड़ा नॉर्मल वो लंगर होना चाहिए, समोसा प्रसाद होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर मन नहीं माना समटाइम्स, कि वो लगता था कि हम बना रहे हैं इतना लैविश लैविश, तो मैं गुरुजी को भी वैसे खिलाना चाहती हूँ। तो मैं इसमें एक बताऊंगी कि जब ये चल रही थी, जर्नी चल रही थी, तो मैं ना दिल्ली गई थी, वहां पे दिल्ली में मैं बड़ी बीमार हो गई। जब मैं वापस आई, तो तब मैंने ना, बिकॉज मैं बेड पे थी, तो मुझे था नहीं, मैं कहीं बाहर तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने ना ही सेवा पे जा सकती थी, तो मैंने तब ना संगत के यूट्यूब पे ओल्ड संगत के सत्संग सुनने शुरू करे। ओ माय गॉड, इट वाज सो मैस्मराइजिंग, सो मैस्मराइजिंग। मुझे गुरुजी से और प्यार होता गया, और प्यार होता गया। और फिर मुझे सुनने में आया कि गुरुजी का ऐसे, मतलब ये नहीं चलाना चाहिए, ये नहीं शब्द बजने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे दौर में आ गए थे कि जहाँ पे भजन चल रहे हैं, वहां पे सिद्धार्थ मोहन चल रहे हैं। ये नहीं बोले कि गलत है, पर ओल्ड संगत से हमें पता चला कि शब्द जो गुरबानी है, उसमें अपना ही एक वो है, मतलब उसमें अपनी ही ब्लेसिंग्स है। गुरुजी वही बजाते थे, कहते थे। तो
फिर वो सब सत्संग सुने जिसमें था कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंड ऑल दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और बॉम्बे में ऐसा माहौल चल पड़ा था कि इट वाज लाइक अ कंपटीशन। हर कोई मतलब एक से एक फूल ला रहा है, मतलब कितने पैसे खर्च कर रहे हैं फूलों के लिए एंड ऑल दैट। और मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी बहुत प्यारा सा, कि मैं ये नहीं कहती, मैं भी उसी की एक हिस्सा थी कि हमने सत्संग करने तो थीम्स रखनी और डेकोरेटर से सजवाना, फूल लेके आने 10-10 हजार रुपए के ऐसे खर्चने। तो एक बार मैं किसी के घर में गई और मैंने वहां पे, मेरे साथ एक और संगत थी, तो वो भी साथ में गए और हम वहां के घर में गए थे, तो इतना लैविश डेकोरेशन था और इतना लैविश केटरिंग हो रही थी और सब था। तो जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे साथ एक संगत थी, मुझे कहती है, यार पम्मू, तो मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, मेरा दिल है कि मैं भी सत्संग करूं घर पे, मैं भी बुलाऊं गुरुजी को, पर मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, आई विल नेवर बी एबल टू अफोर्ड समथिंग लाइक दिस। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये जो है ना, इस गुरुजी क्यों कहते थे सिंपल रखने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना भेड़ चाल में तो सब चल देंगे, लेकिन जो जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कैसे करेंगे? उनको ये होता है कि हम तो इतने बंदे बुला नहीं पाएंगे, तो हमारे पास गुरुजी नहीं आएंगे। सो वो थॉट चलने लगे और उस दिन मुझे समझ में आया कि नो। और फिर मैंने सत्संग भी इतने सुन लिए थे कि नहीं, हमें बहुत सिंपल दरबार रखना चाहिए, बहुत ही सिंपल फूड रखना चाहिए। इवन दो वी कैन अफोर्ड कि आप अफोर्ड कर सकते हो 5-6 आइटमें रखना वट। फिर मतलब मैंने अपने पे अप्लाई किया और मैंने वो चालू किया, और तब से लेके अब तक तो गुरुजी ने ऐसे 360 डिग्री टर्न कर दिया है। और जहाँ पे हम लोग भंगड़ा लगाते थे, वो करते थे, वो आज तक कंफ्यूजन चल रही थी। एंड थैंक्स टू दिस मल्टीलिंगुअल टीम एंड देयर सत्संग, इतने इतने हमने ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं कि इतने हमें सीखने को मिला है कि मैं क्या कहूँ, इतना मजा आ रहा है गुरुजी से, इतना प्यार बढ़ता जा रहा है कि ऐसे दिल करता है। अभी थोड़े महीने पहले आई वॉज ऑन द बेड, एंड उसके लिए बहुत ही सत्संग है जो मैं कभी शेयर करूंगी। तो मतलब गुरुजी ने अस्पताल भी पहुंचा दिया, गुरुजी ने ऑपरेशन थिएटर भी दिखा दिया, सब कर्म काटने के लिए, सब समझ आ गया है, एंड आई एम एंजॉयिंग द राइड, नथिंग टू से, मतलब नो कंप्लेन्स। बट ये हो गया, ऐसा दौर आ गया है कि I want to talk about Guruji, I want to listen to satsangs, I want to just have satsangs in the house. So that has become my life, which I'm just enjoying. And ये सब जो संगत, ओल्ड संगत अंकल लेके आते हैं, उनको जब वो कहते हैं, हमें ऐसा लगता है मुझे कि गुरुजी पास में बैठे हैं, काश मैं गुरुजी के पास बैठी होती। पर फिर भी वो फीलिंग आती है कि बस गुरुजी से प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इस जर्नी में मैंने सीखा है कि आप संगत को प्यार करो तो गुरुजी को प्यार करो, बिकॉज आप प्यार करते हो, क्योंकि बैम्बी आंटी के सत्संग सुने हैं, सारे ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं कि गुरुजी हमारे में बसते हैं, गुरुजी संगत में बसते हैं। तो अगर आपको संगत प्यार करती है, दैट मीन्स गुरुजी लव्स यू, एंड इफ यू आर लविंग द संगत, दैट मीन्स यू आर लविंग गुरुजी। सो लाइक आई एम जस्ट गेटिंग मिक्स्ड अप, बट दिस इज माई थिंग वेयर आई हैव रीच्ड टुडे, कि इतना प्यार मिल रहा है मुझे संगत से, इतना प्यार मिल रहा है। और फिर मेरे को मतलब देयर इज सो मच सत्संग की गुरुजी ने जब मुझे जोड़ा, और मैं इतनी बुद्धू की जब मैंने कहा कि अरे मैं नहीं मानती ये बाबा बाबा में और सब, मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। तो अब जाके समझ में आ रहा है कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमें जब अपने पास बुलाते हैं ना, तो हमारे, या तो कोई क्या है, आप जाओगे कि आप कोई दर्द में हो, आपको कोई पेन है, एंड यू आर गोइंग टू आस्क गुरुजी कि मुझे ठीक कर दो, ये है। अगर आप जाते हो और आप जाने लगते हो, तो गुरुजी आपको इसलिए अपने पास लेते हैं कि आप पे कोई बड़ा टाइम आने वाला है जिसमें आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, यू नो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी जस्ट दिस ईयर। there are so many things that happened to me, and I realized कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ इसलिए जोड़ा कि इतने ups and downs
financial problem, health problem, matlab you know, arthritis at its peak. I had a brain stroke. I fell down from the steps. And गुरुजी ने कहाँ बचाया है. मतलब इतने सत्संग है, इतना बड़े बड़े सत्संग है, इतने प्यारे प्यारे सत्संग है. But I know the time is over, so I'll share another time. There's so much. How can I, मतलब 8 साल हो गए मुझे मंदिर जाते, या गुरुजी के बारे में जानते, या गुरुजी को प्यार करते. हाउ कैन आई से इन 1 hour, मैं 1 घंटे में कैसे बयां कर सकती हूँ अपनी इतनी, क्योंकि जब मैं एटलीस्ट गुरुजी से जुड़ी हूँ तो एक एक दिन सत्संग है, एक एक सांस सत्संग है. मतलब and I can say that like because I have a satsang for every month, every year, like every day there is a satsang. There are so many satsang. I will share sometime when he gives me agya again, and I don't know how to end it up. I would just like to say कि जो हम सत्संग करते हैं, मैंने ये सीखा है, जो प्लीज एवरीबडी, आई लाइक टू थैंक भाटिया आंटी, क्योंकि मैंने जब भी उषा भाटिया आंटी है ना, जो उन्होंने सत्संग किया था, उसमें से मुझे समझ आया, मैंने काफी कुछ सीखा कि सत्संग कैसे किए जाते हैं. जैसे गुरुजी ने कहा टाइम पे सत्संग रख ले, बाणी चलनी चाहिए है, फिर सत्संग शेयरिंग होनी चाहिए है, यू नो अ काइंड ऑफ अ पैटर्न टू यू नो गेट अस इन दैट थिंग कि हमको ऐसे चलना चाहिए. बिकॉज जो हम सत्संग कर रहे हैं, अब जो संगत जुड़ रही है, नई संगत जुड़ रही है, what they have to follow. I mean, we can't, because our guru is so like what to say, he's so this thing, he's so flexible or whatever, but there is certain discipline that he wanted us to follow, certain protocols that he wants us to follow. So you know, Usha aunty explained so beautifully, and I thank her, and I'm seeing to it that I send that to everybody, and we should follow these जो पुरानी संगत हमें कहती है, क्योंकि वो गुरु जी के मुंह से निकली हुई हैं. अभी आजकल जो बैम्बी आंटी के चल रहे हैं, मतलब आई एम डाइंग टू हियर दोज एवरी डे. मेरे को तो लगता है कि खत्म ही ना हो, चलते ही रहें, जैसे सब आके उधर मिलके बताते हैं गुरु जी के साथ जो मोमेंट स्पेंड किए हैं. सो अंकल, there's so many things I want to talk about, so many things I want to say, what I've learned, but I think I'll do it next time. And yes, I don't know how to end this or what to say. Just thank you, Guruji. इतनी नियामता मिलियां हैगियां, इतनी दाता मिलियां हैगियां, सारियां ते कोई सुना नहीं सकता. नहीं सुना सकता. Countless blessings. And right in front of me, somebody went up to Guruji, said कि हम साईं बाबा को फॉलो करते हैं, गुरुजी आप बुरा तो नहीं मानोगे. गुरुजी का जवाब था, कमलिया जोत ते इक्को हैगी है, बुरा की मनना है, जिन्नू मनदे हो मनदे जाओ, पर चंगी तरह मनो. और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, I would have liked to hear how you went to Hemkund and Vaishno Ma. Those I would have loved to hear. But Abhi, today you are overwhelmed. So I had जो so many pointers, so many satsangs. There's a lot of satsang, uncle, because I जो said दर्दों की आप बात करती हैं, जो बीमारी की बात करती हैं, वो दर्द भी हमको अजीज है जो बन के तेरा पैगाम आता है. वो दर्द भी हमको अजीज है जो बन के तेरा पैगाम आता है. तुझे भूलता जब ये नाचीज है, तुझे भूलता जब ये नाचीज है, आह की राह से लब पे तेरा नाम आता है गुरुजी. आह की राह से लब पे तेरा ही नाम आता है गुरुजी. So during the course of your satsang, Nidhi Sharma aunty wanted to ask something, and I would request her to mute herself and ask what she was. But I would like to say one thing before that. अभी आपने बहुत अच्छी शायरी कही है. I am sure कि गुरुजी ने हम सबको शायर बना दिया, हम सबको पोएट बना दिया. Everybody has a poetry for गुरुजी. Everybody has that love, that शायरी for गुरुजी. कहते हैं ना, मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा
और जब से हर मिले आपको शायरी आ गई। हर मोहब्बत में शायरी हो जाते, पर गुरुजी के मोहब्बत में ज्यादा ही हो जाए। ज्यादा ही पोएट्री, शायरी, सब गाने, सब कुछ होता है। तो just wait for Nidhi Sharma aunty to यस, ask यस, you a question. जय गुरु जी। जय गुरु जी। पम्मू आंटी, अब मैं, आप मुझे जानती है, मैं आपसे, आपकी वजह से ही इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, इसीलिए मैं राइज हैंड करके आपको सिर्फ शुक्राना करना चाहती थी। पता नहीं कैसे मुझे आपका फेसबुक से नंबर मिला, आपने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। आपने मुझे रिप्लाई किया, आप हॉस्पिटल में थी। मैं बस आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। आप जानती हैं, आपकी, मैंने मेरी बेटी की फोटो भी भेजी थी। चल नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती है, बट आपकी वजह से मैं इस ग्रुप में जुड़ी, संगत में जुड़ी। और मुझे बहुत, आज आपको सुन के मैं सीरियसली, आई डिड नॉट न्यू, जब मैंने नाम सुना था आज की मैं, आप इस ग्रुप में आने वाली हैं और आप आज सत्संग शेयर करने वाली है, जब से आपने बोलना चालू किया, यू मोटिवेटेड मी लाइक एनीथिंग एज अ मदर, बिकॉज दिस नीड मी एज अ मदर। मतलब आपके सत्संगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, और आज और भी मैं शायद एक, ना बोलते, 100 गुना आगे मैं बढ़ के गुरु जी के साथ अटैच हो गई। आई रियली वॉन्टेड टू थैंक यू, इसीलिए मैंने दीप सत्संग में अपना हैंड रेज किया कि किसी तरीके से मैं आपको जेन्युइनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे जोड़ा। पता नहीं, बैम्बी आंटी की सत्संगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। पहले तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी, जो मुझे सिर्फ हल्का फुल्का मोटिवेट करते थे, बट आज आपको सुन के आई जेन्युइनली थैंक ईच एवरी। पासन अंकल को भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। पता नहीं कैसे जुड़ गई मैं ऑफिस करती हूँ, अपनी बेटी को संभालती हूँ, उसको थेरेपीज देती हूँ, बट ये जो टाइम बना है ना मेरा 8 बजे का, ठीक 8 बजे बैठती हूँ अपनी बेटी के साथ खाना खाने के लिए, और मैं आपका सत्संग ये अब कभी नहीं छोड़ती। अब मतलब एक दिन मुझे याद है, शायद सत्संग नहीं होना था, और मैंने सच में ना पम्मू आंटी को इतना परेशान कर देता मैसेजेस करके, आज लिंक नहीं आया है, क्या हो गया, आज लिंक नहीं आया है सत्संग, क्या गुरु जी मुझसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से सत्संग नहीं हो रहा है आज, और मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ इस ग्रुप से। पता नहीं, आई वाज बॉदरिंग हर सो मच ऑन दैट व्हाट्सएप चैट टू हर, एंड शी जेन्युइनली रिप्लाइड मी कि नहीं, आज कोई सत्संग ही नहीं होना है, अगर तुम्हारे पास कोई लिंक है तो मेरे साथ शेयर करो। बट मैंने कहा नहीं पम्मू आंटी, मुझे तो आपसे ही मिलते हैं, मेरे को किससे मिलेगा। बट देन फिर उसी तरीके से मैं वासन अंकल के साथ जुड़ गई, उन्होंने मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दिया। आई आई थैंक ईच वन ऑफ यू मुझे गुरु जी से जोड़ने के लिए। और मैं सच्ची बोल रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं भी एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी अपनी बेटी का, कभी मुझे मौका मिले तो। गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं हार्डली कुछ 5-6 मंथ्स पहले जुड़ी हूँ, but the changes I'm seeing in my daughter, I would really like to share it with every one of you, कि मैं क्या देख पा रही हूँ, और वो मुझे कितनी ताकत दे रहे, एक माँ होने के नाते, कि मैं अपनी बच्ची को अकेले लेके थेरेपीज पे जा रही हूँ। वहां पे मैंने सत्संगों में सुना है कहीं पे, कि आप है ना वहां पे शब्द चलाओ, या वहां पे उनके ये चलाओ, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं, आई डोंट नो, आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, बट आई एम ऑल्सो ओवरवेल्ड लिसनिंग टू पम्मू आंटी की मेरी बेटी सच में सीरीज सेशंस में सिर्फ खड़े रहना सीख पा रही है अब। दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज वो 5 साल की है, वो अभी ये सब नहीं कर पा रही थी, एंड द वे आई एम सीइंग इम्प्रूवमेंट इन हर अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि उसके रिपोर्ट्स में आज तक कुछ नहीं आया था, तो हम लोग दर बदर कहाँ कहाँ नहीं भटके। पम्मू आंटी ने मुझे अपने घर भी बुलाया, मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगी आपके घर। बट थैंक यू ईच वन ऑफ यू। बट मुझे भी अगर ये मौका मिले अपना सत्संग शेयर करने का कभी भी, आगे भी, मेरे पास भी इन्हीं 6 महीने में इतने सत्संग है सुनाने के लिए, कि मैं आज पम्मू आंटी की फीलिंग को समझ पा रही हूँ कि वो इतनी ओवरवेल्ड एक्चुअली क्यों है। और आंटी, अंकल, आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारे सत्संग है, क्योंकि जब मेरे को सेवा दी गुरुजी ने मंदिर में, और फिर वो मतलब रुक गई, फिर क्या हुआ, और उस सेवा में जो जो संगत, सो आई फील एवरीथिंग इज अ सेवा गिवन बाय गुरुजी। उस टाइम पे मैं जो सेवा कर सकती थी गुरुजी ने वो ली, अब ये सेवा गुरुजी ने मुझे दी है। आई फील
that whatever satsangs we are sharing, this is a seva to us, like, you know. And there are so many satsangs about so many aunties like that, जिनको गुरुजी ने light of divinity दिलवाई और कैसे उनकी life change हो गई है, because there were so many sangat in the car, I mean in the shuttle when I used to take. तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो आंटियां होती थी, अरे आंटी ये नहीं हो रहा, तो फिर गुरुजी ने जैसे कहा है, बस आप सुनो मत, मेरी तरफ गाइड करो, तो वही करती थी। जैसे जैसे गुरुजी ने सोची दी वैसे वैसे मैं करती थी। मैं बता नहीं सकती, अंकल पिटारा का पिटारा है, क्योंकि सेवा में जब गुरुजी ने लगाया कि शटल को लेके जाना, ऊपर नीचे लेके आना, तो आप समझ नहीं सकते उसमें मुझे इतनी पावर मिली है, क्योंकि जो संगत आती थी, नई नई संगत, और मुझे एक्साइटमेंट से बताती थी, अरे आंटी हमारे साथ पता है ये क्या हुआ, ऐसे हुआ, एंड आई यूज्ड टू बी फील सो हैप्पी कि हमारे गुरुजी अच्छा ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। मैं कहती थी गुरुजी और ब्लेसिंग दो, और ब्लेसिंग दो, और सत्संग सुनने को मिले। मतलब आई कांट टेल यू, मतलब there are so many satsangs and so many संगत के सत्संग, और मतलब वो खुद ही शायद शेयर करेंगे, आएंगे प्लेटफॉर्म पे, जैसे अंकल ने ये शुरू किया है कि गुरुजी ने उनको दी है कि ये प्रथा चलाते रहना है। उनको सपने में आके कहा गया है वासन अंकल को, और ये प्रथा चलती रहे। तो अभी तो बहुत सारे सत्संग है अंकल, इतनी आंटियों ने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ के उनको एक एक आंसर मिलता है, एक एक चीज स्टेप बताया जाता है, गुरुजी ऐसे जवाब देते हैं। और अंकल जब मैं गुरुजी को पहले जब मैं मिली थी ना, तो मैंने थॉट में सोचना और मेरे थॉट्स पूरे हो जाने, तो मैं सुबह उठती तो मैं गुरुजी की तरफ देखती, मतलब गुरुजी आप हो क्या, मतलब आप इतने क्यूट हो, आप ऐसे कैसे कर लेते हो। तो फिर जब भी मुझे सत्संग मिलने को शेयर सुनने को मिलते थे, तो मुझे सब लोग ऐसे ही कहते थे कि हम भी सोचते हैं गुरुजी इतने क्यूट है, मतलब कैसे सुन लेते हैं, मतलब एवरीबॉडी वुड स्टार्ट शेयरिंग द सत्संग। सो एंड वी से ना कि ओल्ड संगत के पास सत्संग है, और अरे न्यू संगत के जो मैं सुनाने जाऊंगी, हमारा 40 दिन हुआ था जिसमें न्यू संगत ने आके सत्संग सुनाए थे, मतलब रोंगटे खड़े करने वाले सत्संग है। इतने सत्संग है नए संगत के पास कि गुरुजी तब थे, अब है, हमेशा रहेंगे, और इतने सत्संग हो रहे हैं हर घर में, हर बंदे के साथ, हर संगत के साथ सत्संग पे सत्संग हो रहे हैं अंकल। सो आई डोंट नो मतलब कैसे होगा ये, बट मैं सुन के पागल हो जाती थी कि अरे सच्ची ऐसा हुआ कि गुरुजी रिक्शा में छोड़ने जाते हैं, कोई लड़की अकेली हो, बस खाली बोल दे, मंदिर में जाते थे जब भी कोई, तो खाली उन्होंने सोचना मैं रात को इतनी लेट कैसे जाऊंगी, और उनको संगत घर तक छोड़ के आती थी। मतलब ऐसे ऐसे सत्संग है ना, एवरी डे वाज अ सत्संग फॉर मी व्हेन आई वाज that when Guruji gave me shuttle seva. So I don't know, I can just go on and on and on and on. I'll not stop. Jai Guruji, Shukrana Guruji. I'm sorry for taking so much time. Jai Guruji. थैंक यू पम्मू आंटी। एंड एक बार फिर सुरेश वासन अंकल की आंटी वीना वासन आंटी के लिए प्रे करें प्लीज, उनके लिए अरदास करें, गुरुजी को प्रार्थना करें, प्रेयर करें कि जो व्यक्ति इतना बढ़िया काम कर रहा है गुरुजी की सेवा में, उसे दुख ना मिले। और इसी सब के साथ आई थैंक पम्मू आंटी, आई थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस। एंड अब सभी संगत गुरुजी से आज्ञा लेके लॉग ऑफ करेंगे, प्लीज आज्ञा लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना, प्लीज ब्लेस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना बहुत गुरुजी। बहुत सबकी शुक्राना मनोकामना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अपने गुरुजी। कष्ट काटेंगे गुरुजी सबका जय भला करो बाबा गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू पम्मा आंटी, वेरी नाइस सत्संग, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना पम्मू गुरुजी। थैंक यू आंटी, पम्मू आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू पम्मू आंटी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी। शुक्राना।